گا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور منی بجٹ اگر حکومت لاتی ہے وہ آئے گا بھی, پھر پاس بھی ہوگا, ود ان اسٹیپولیٹڈ ڈیٹ بھی پاس ہوگا. اپوزیشن جو مرضی کر لے وہ سے فرق نہیں پڑے گا, یہ بجٹ پاس ہوگا. میں آپ کو بالکل ایک پختہ یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جو مرضی کر لے یہ بجٹ پاس ہوگا انشاءاللہ تعالی. پنجاب پہ بڑا فوکس رہا. پیپلز پارٹی پہلے بھی کہتی تھی کہ ہم عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف سے جواب نہیں آتا تھا. اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ جو اپوزیشن کہتی ہے کہ آج گئی حکومت کل گئی حکومت, یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے اور ایک دعوے ہیں, باقی اپوزیشن آپ کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے؟ جاوید بھائی, اپوزیشن ہمیشہ چیلنج ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بفضل خدا کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے, ہمیں کہیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہم لوگ انشاءاللہ تعالی چاہے یہ لوگ جو مرضی کر لیں, ہماری نہ حکومت کو خطرہ ہے, 5 سال حکومت چلے گی, یہ بجٹ بھی پاس ہوگا, اگلا بجٹ بھی پاس ہوگا انشاءاللہ تعالی, 2022 والا بھی ہوگا, 2023 والا بھی بجٹ یہی حکومت پاس کرے گی انشاءاللہ. یعنی کوئی آپ کو نہیں لگ رہا کہ جو اگر جلد سے جلوس ہوتے ہیں, کیونکہ 23 مارچ کے لیے انہوں نے لانگ مارچ کا بھی اعلان کر رکھا ہے. جاوید بھائی, ازمان لے آئیں, ان کا حق ہے جلد سے جلوس کرنا, لیکن کوئی یہ خیال کرنا چاہیے کہ 23 مارچ کو آپ کی افواج پاکستان کی پریڈ بھی ہوتی ہے, 23 مارچ منایا جاتا ہے. تاریخ نے یہ کیوں چنی؟ اس لیے کہ ان کی نیت میں, ان کے اینڈ گیم کے اندر مجھے فتور نظر آتا ہے, وہ پھر سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سید یاور عباس بخاری, پنجاب کے وزیر سوشل ویلفیئر اور بیت المال ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں. کراچی سے تقریباً 280 کلومیٹر دور ضلع دادو کے تعلقہ جوہی میں کوئے کیرتھر کے دامن میں واقع منچھر جھیل, جو دریائے سندھ سے قدرے بلندی پر واقع ہے, اور یہ پاکستان کے بڑے آبی ذخائر میں اس کا شمار ہوتا ہے. اب وہاں پر پانی کی بجائے دراڑیں نظر آتی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر نکاسی آب کی لائنیں, مختلف صنعتوں سے آنے والا جو زہریلا پانی ہے, اس کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں کا فضلہ ہے, اس نے بھی اس پانی کو بہت زیادہ آلودہ کر دیا ہے. اور ایک زمانے میں جب وہاں پر میٹھی مچھلی ہوا کرتی تھی اور وہاں کے ماہی گیر انتہائی خوش و خرم زندگی گزارتے تھے, اب ہیں اور فاقہ کشی پر اس وقت گزارا کر رہے ہیں. ان کا گزارا نہیں ہے, وہ فاقہ کشی پر مجبور ہو چکے ہیں. اس حوالے سے ہمارے نمائندہ خصوصی علی اصغر ارباب نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے. آئیے آپ کو پہلے وہ رپورٹ دکھاتے ہیں. آر بی او ڈی کا پانی جب سے زہر منچھر میں ڈالا گیا ہے, پوری طرح منچھر کو تباہ کر دیا گیا. نہیں مچھی ہوتی ہے, نہیں پکی ہوتی ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے فلٹر پلانٹ ناکارہ ہیں. گدھا گاڑی پہ, موٹر سائیکل پہ, سائیکلوں پہ پانی لے کے آتے ہیں. بیماریاں گردہ جاندہ خراب ہے. حکومت بھی ہماری ہے, سی ایم سندھ بھی ہمارے گاؤں کا, اس کے باوجود بھی ہمارے پاس پانی نہیں ہے. موہنا کبیری کی حاکم زادی گزشتہ کئی پشتوں سے ایشیا کی بڑی میٹھے پانی کی منچھر جھیل سے وابستہ ہے, جو بدقسمتی سے اب آلودہ پانی کے ذخیرے میں تبدیل ہو چکی ہے. حاکم زادی آج بھی اپنے شوہر کے ہمراہ جھیل میں کشتی چلا کر مچھلی پکڑنے کا کام کرتی ہے, مگر بدقسمتی سے آلودہ جھیل میں میٹھے پانی کی مچھلیاں ناپید ہو گئی ہیں. جھیل میں اب کھارے پانی کی چند اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں, جو بے ذائقہ, چھوٹی اور انتہائی کم قیمت پر فروخت ہوتی ہے. وہ دن بھر کی محنت کے بعد جھیل میں کچھ کلو مچھلیاں پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, جسے بیچ کر مشکل سے وہ گھر کے اخراجات پورے کر پاتی ہے. حاکم زادی نے اس جھیل کا عروج بھی دیکھا ہے, جب اس جھیل میں کئی اقسام کی
मीठे पानी की मछलियां पाई जाती थी और ये झील साइबेरिया के ठंडे इलाकों से आने वाले लाखों मेहमान परंदों का मस्कन थी, जिससे मछेरों का रोजगार और खुशहाल जिंदगी जुड़ी हुई थी। झील जहरीली होने के बायस माहीगीरों की खुशियों से भरी जिंदगी अब माजी का किस्सा बनकर रह गई है। असांजी जिंदगी मुश्किलात में है, हमारे पास कुछ नहीं। हमारे बच्चे जहरीला पानी पीते हैं, हम पानी खरीद करें या गंदम। बच्चे पानी पीते हैं तो पेट में दर्द होता है, बुखार होता है, बच्चे बीमार हैं, हमें कोई सहूलत मैसर नहीं। पहले झील का उरूज था, पानी मीठा था, झील में बेल बूटे थे, हमारा रोजगार था, हमारे पास 1 लाख रुपए की कश्तियाँ थी और हम खुश थे। अब दिन भर में हम 10 रुपए भी नहीं कमा पाते। पानी जहरीला है, तबाह मन छुराए, मीठा पानी नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करा। 250 मुरबा किलोमीटर पर फैली मंछर झील वैसे तो पुरानी है, मगर इस झील के अतराफ में बंद 1932 में तामीर किया गया। सिंध के अजला जामशोरो और दादू में वाक़या ये झील सेवन शहर से 15 किलोमीटर दूर है। कीरथर के पहाड़ों और दरियाए सिंध के पानी से सैराब मंछर झील से हजारों माहीगीर गुज़श्ता कई साल से मछली पकड़ने का काम करते आ रहे हैं, जिनमें अब ज्यादातर झील आलूदा होने के बायस रोजगार की तलाश में यहाँ से जा चुके हैं। दरियाए सिंध के दाएं तरफ लाड़काना और दादू के अजला की जरई जमीनें सेम के बायस तबाह होने लगी, जिसे बचाने के लिए वफाकी हुकूमत ने जरई और सनती फजले से भरपूर सेम के नमकीन और जहरीले पानी को समंदर में गिराने की मंसूबाबंदी के लिए RBOD का मंसूबा बनाया और जरई जमीनों के आलूदा और खारे पानी को बगैर साफ किए आर्जी तौर पर मंछर झील में गिराने का आगाज किया गया, जिससे मुल्क की बड़ी और खूबसूरत झील उजड़ने लगी। सन 1976 में वापडा ने एक स्कीम बनाई नॉर्थ सरफेस ड्रेन प्रोजेक्ट, जो कि दादू और लाड़काना अजला का जो सेम और थोर पानी का था उसके निकास के लिए बनाया गया था। लेकिन अल्टीमेटली जो मेन नारा वैली ट्रेन थी, जो कि सक्खर बैराज के वक्त बनाई गई थी, जो उसका मेजर काम था सिर्फ एग्रीकल्चर रन ऑफ पानी उसको लेना, लेकिन उसको फिर सेम और थोर के पानी में सरफेस ड्रेन में कन्वर्ट किया गया और ये जो है मंछर का जो है मेजर पोल्यूशन का सबब बना। लेकिन इसमें ज़्यादा जो इजाफा हुआ वो 92 के बाद हुआ। जिन लोगों की पूरी ज़िंदगी उन पानी से जुड़ी हुई थी वो एक तबाह होकर रह गई है। सिंध गवर्नमेंट ने ही उनको भिखारी बना दिया है। ज़ाहिर है उनके लिए ना उनकी रोज़गार का सोचते हैं और ना जो इनका जो मंशर जहरीला हो रहा है उस पानी के लिए कोई मुतबादल हल निकालते हैं। अब्दुल्ला शाह ने सेम का पानी मंछर झील में गिराया, मंछर को डैम बनाया। डैम बनने से हमारी तबाही हो गई। यूं वक्त गुजरने के साथ अब झील मुकम्मल तौर पर आलूदा और जहरीले होने के बायस माहौलियाती अलमे में तब्दील हो गई है। झील का पानी आलूदा हो चुका है, जो पीने और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी काबिल नहीं रहा है। TDS जो को है, सो दिस मेन पैरामीटर टोटल साल्ट कंसंट्रेशन जो को है, वो अगर वो है आदमी को नॉर्मल आदमी के लिए है 500। WHO बोलती है तो मैक्सिमम जहाँ स्केर्सिटी है तो वो जो को है सो होनी चाहिए 1000 है। मगर यहाँ तो जो दिस इज कंसंट्रेशन जो को है सो कभी भी 3000 से कम नहीं जाती है, मगर जगह सो 6-7,000 चली जाती है विच इज़ अबाउट 7 टाइम्स ज़्यादा है। वो आदमी पानी पिएगा उसमें स्टमक में प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हार्डनेस ज़्यादा है, वो जो कोई तो किडनी स्टोन्स बन जाएंगे उसके में। झील का खतरनाक और जहरीला मवाद इन मछलियों को खाने की वजह से इंसानों में मुंतकिल हो रहा है, जो इंसानी सेहत के लिए भी इंतहाई नुकसानदा है। खाली ये नहीं है कि सैलिनिटी वो नमकियात बढ़ रहे हैं, नमकियात बढ़ने से तो ये होता है कि ठीक है ये पानी पीने के काबिल नहीं रहा, पिया नहीं जा सकता, या मीठे पानी की मछली जो है उसमें वो नशोनुमा नहीं पा सकती या बढ़ नहीं सकती, वो उसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। मगर बाकी जो केमिकल्स इसमें बढ़ रहे हैं वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। झील के पानी में जहरीले अनासर के बायस जंगली बेल बूटे भी खत्म हो गए हैं,
जो आबी हयात के साथ मेहमान परंदों का खुराक और मच्छरों का जरिया माश थे। अब झील में मीठे पानी की मछलियां नापेद हो गई हैं और इंतहाई कम तादाद में मेहमान परंदे झील का रुख करते हैं। झील की आलूदगी ने माहौलियाती अलमे के साथ एक बड़े इंसानी अलमिये को जन्म दे दिया है, जहां माजी में खुशहाल मायगीर खानदान मुआशी बदहाली का शिकार हो गए हैं। मासूम बच्चों के चेहरों पर गुर्बत ने महरूमियों के निशान कुन दिए हैं, जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो रहे हैं। पानी जहर है। मंचर झील में मछलियाँ नहीं हैं। हम मंचर झील के माहीगीर गरीब हैं और मुश्किलात में हैं। सुबह झील में गया था, 1.5 किलो मछली पकड़ सका हूँ। पानी जहरीला है और यहाँ रोजगार भी नहीं। इसकी हुकूमत है, मगर हुकूमत किसी की नहीं सुनती। वोट पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह को दिया, जो सुनता ही नहीं, सिर्फ अपने काम कर रहा है। जहरीला पानी आ गया है, अब कुछ नहीं है। बहुत तकलीफ में है। झील में ना मछली है और ना परिंदे। अब हमारे मंचर झील में ये मछली बची है। खारे पानी के बायस कुछ नहीं होता। ये मछली हम 40 रुपए की लेते हैं और आगे 50 रुपए किलो बेचते हैं। हमारा क्या होगा? आटे का 1 किलो 70 से 80 रुपए का है। हमारा वजीर आला हमारी नहीं सुनता। अवाम की सुने तो कुछ करे, बड़े लोगों की सुनता है। गरीब की कोई अहमियत नहीं है। अब हमारी वजीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है, अपील है कि हमारे माहीगीरों का हम माहीगीरों की तरफ थोड़ा ध्यान दें। हम भी पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हम भी सिंध के रहने वाले हैं। सिंध का वजीर आला जो है वो तो ध्यान नहीं दे रहा हम माहीगीरों के ऊपर। हम वोट पीपल्स पार्टी को दे के आ रहे हैं। सदी जब पीपल्स पार्टी बनी है हम उनको ही वोट दे के आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी हमारा मसला हल नहीं किया है। अब हमें यकीन हो गया है हमारा सिंध का जो वजीर आला है ना, वो ही हमें बर्बाद करने के पीछे पड़ा है। झील में गुज़श्ता कई साल से कश्ती घरों में रवायती अंदाज से रहने वाले ज्यादातर माहीगीर झील को खैराबाद कहकर जा चुके हैं और अब चंद कश्ती घरों में मछेरे अपनी पुरानी तहजीब को मुश्किलात के बावजूद जिंदा रखे हुए हैं। बदकिस्मती से झील में आलूदगी से ये कदीम रहन सहन और सकाफत भी दम तोड़ रही है। जो पहले नस्ल थे मछली का वो अभी तक ख़त्म है। बाकी नया ये आया है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये कमाते हैं। वो हम क्या करें? आटा लेते हैं और तो घी नहीं लेते हैं। जो भी हमारे जो रिश्तेदार थे वो तकरीबन चले गए हैं इधर से। बहुत आवाज़ हमारा उठाया, लेकिन हमारा कोई भी सुनने वाला नहीं है। मुराद अली शाह के पास वज़ीर आला जो हमारे इलाके का है, हम उसके पास गए हैं और सारे बंदे लेके गए हैं। तो शाह जी मेहरबानी करो, तुम्हारे को खुदा ने वज़ीर आला बनाया है। हमारी दुआओं से, हम गरीबों से, हमारे को झील को उसी जो पुराने ज़माने में झील थी उसी ज़माने का हमारे को बना के दियो। हमारे खुदा के वास्ते हमारा ये काम करो। हमारे को सिर्फ ये बोलता है हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। मैंने बोल दिया है हो जाएगा। 10 मरतबा हम उसके पास गए हैं, लेकिन होता तो अमल कुछ नहीं है। नहीं रहा है, कुछ भी नहीं रहा है। हमारे बच्चे भूखे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, मजदूरी भी नहीं मिलती। हुकूमत जिम्मेदार है, उसने ये दंड सारी खत्म कर दी। हमारे को तो भाई मेरा डाडा, मेरा अब्बो, हमारे को कम से कम हमारी उम्र 60 साल है। एक साल बाहर नहीं रहे, किश्ती में रहे। ये लोग कश्तियों में झील के अंदर तो रहते हैं, मगर पानी बाहर से मंगवाते हैं, क्योंकि झील का पानी पीने के काबिल नहीं और जहरीला हो चुका है। झील का जहरीला पानी पीने के बायस ज्यादातर लोग खतरनाक अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। वो हम पीते हैं, हमारे को बीमार करता है, हमारे गुर्दे खत्म हो गए हैं। हम पहले तो हटे कटे थे। पेशाब को ने बीमारियां, गुर्दा चंदा खराब है ने, पत्थरी का बताया डॉक्टर। झील के इर्द गिर्द इलाके में मीठे पानी के लिए आरओ प्लांट लगाए गए हैं, जिनमें ज्यादातर खराब हैं। जून 2018 से आज तक ये प्लांट बंद पड़े हैं। कभी कभी उसके हर साल में ठेका टेंडर होता है, वो भी 10% या 15% काम होता है, फिर सारे प्लांट खत्म हो जाते हैं। आज तक पानी की सही मैनेजमेंट नहीं है। मेरे ख्याल से 40-45 फिल्टर है और प्लांट है, वो सारे कुछ खराब है, कुछ चलते हैं तो काफ़ी ख़राब है। बस माल की नहीं हो रही है इसकी। कोई मिस्त्री नहीं आते हैं, फ़ोन करते हैं भाई ये ख़राब है, चीज़ बदली करके दे। फिल्टर नहीं है, केमिकल नहीं है,
वो बस कॉल ही नहीं उठाते हैं। 2 साल 3 साल से कोई आता ही नहीं है देखने के क्या मसला है क्या। घरों में हम लोगों ने हैंडपंप लगवाया है, बोर करवाया है, लेकिन वो पानी जो है कड़वा है, इसीलिए हम लोग तमाम पानी से मजबूर हैं। कहीं कहीं 4-4 किलोमीटर दूर जाकर गधा गाड़े पे, मोटरसाइकिल पे, साइकिलों पे ये झरियाँ उठा के ले जाते हैं और पानी लेके आते हैं पीने के लिए। जो फिल्टर है जो प्लांट 2 से 3 माह चला, फिर खराब हो गया। अगर ये पानी का टैंक ना होता तो हमारे बच्चे तड़प कर मर जाते, क्योंकि पानी हमसे दूर है, हम गरीब हैं और ला नहीं सकते। वजीर आला हमारे गांव का है, मगर उन्होंने हमारी मंछर झील के लिए कुछ नहीं किया। ये झील आलूदा वजीर आला ने की है। वजीर आला को अल्लाह ने ताकत दी, करना चाहे तो कल ही कर सकता है, 5 दिन में कर सकता है, मगर वो हमारे लिए कुछ नहीं करता। 2001 में सेवन से घारों तक 273 किलोमीटर सेम नाला बनाने के लिए वफाकी हुकूमत की फंडिंग से RBOD 2 का मंसूबा बनाया गया। 2001 में शुरू हुआ था। पहले जो उसकी डिज़ाइन किया गया था वो 2200 क्यूसेक्स पे, तो फिर उसको एनहांस करके 3500 क्यूसेक्स इसको डिस्चार्ज पे डिज़ाइन किया गया था। 3500 क्यूसेक्स का वो AW वाले कर रहे हैं, उसको स्टेज 2 कह रहे हैं। फिलहाल तो कुछ काम चल रहा है और अपना 65% तकरीबन काम हो चुका है, बाकी 35% काम रहता है। वो भी इंशाल्लाह 2 साल में इंशाल्लाह हम उसको कंप्लीट कर देंगे, अगर तो फंडिंग जो है वो कांस्टेंट रही, मुसलसल रही तो। 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में वफाकी सतह पर इक़्तिदार में रही, मगर मंछर झील की तबाही से जुड़ा ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका है। जबकि 2008 से आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध में बरसरे इक़्तिदार है। वो फेडरल गवर्नमेंट दे रही है सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट को पैसे। पहले जो था वो फेडरल गवर्नमेंट दे रही थी, फुली फेडरल फंडेड था। अब 11% जो है पैसे वो सिंध गवर्नमेंट दे रही है, बकाया जो है 89% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट दे रही है। इसमें डिले के सबब मुख्तलिफ हैं। फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट है, PSDP का प्रोजेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट दे रही है पैसे, उनमें डिलेइंग पेमेंट होती है। बहुत सारे वजूहात हैं, लैंड एक्विजिशन के मसाले हैं, लैंड के भी वो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उनमें स्टे आर्डर है किन में, तो इस वजह से। और जो डिले होता रहा प्रोजेक्ट, जो ज़मीन की कीमत थी पहले 5 लाख थी, तो अब वो 10 लाख 15 लाख तक पहुंच गई है। इस तरह एस्केलेशन ऑफ प्राइस हो रही है प्रोजेक्ट की। सूबाई महकमा आबपाशी और रेवेन्यू की जानिब से जमींदारों से मंसूबे के लिए खरीदी जाने वाली जमीनों में अरबों रुपए की करप्शन की खबरें मीडिया की जीनत बनी। यूं ये मंसूबा करप्शन, हुकूमत सिंध की अदम तवज्जो और दीगर वजूहात के बायस आज भी तातुल का शिकार है। पहले हमारा जो डिज़ाइन किया गया था वो 2200 क्यूसेक्स पे किया गया था ना, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब वो जब तक वो इस्टेब्लिश नहीं होती तब तक उन्हें नहीं कह सकते करप्शन हुई या नहीं हुई है। शायद कॉन्ट्रैक्ट्स का मसला है, कुछ जो दिए गए थे स्टेज 1 के 14 में और 15 में, वो नेब वाले कहते हैं कि गलत तरीके से दिए गए थे। झील के इर्द गिर्द के इलाकों को माजी में काश्तकारी के लिए इसी झील से पानी फराहम किया जाता था, जिससे ज़रई ज़मीनों में गंदम, तंबाकू, कपास और दीगर फसलें लहराती थी, जो झील के जहरीले होने और सहम के बायस तबाह हो चुकी हैं। नमकियात बढ़ने के बायस सोना उगलने वाली ज़रई ज़मीनें बंजर हो गई हैं। में जहरीला पानी और पीने का नहीं है, जानवर भी नहीं पीते हैं और हमारी खेती बाड़ी भी कुछ भी नहीं होते। मंछर झील के इंतखाबी हल्के में गुज़िश्ता दहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ही जीतते आ रहे हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद अब्दुल्ला शाह इसी हल्के की अवाम के ताउन से सियासी मैदान में कामयाब हुए। उनके बेटे और सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का भी यही हल्का इंतखाब है। बदकिस्मती से जमीन बंजर होने और मीठे पानी की अदम दस्तयाबी के बायस सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह के आबाई गाँव से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद माजी का मशहूर तजारती शहर बूबक भी उजड़ गया है। ये वज़ीर आला का ये शहर है, वहीं वज़ीर आला के शहर में हम इधर प्यासे मर रहे हैं। हमारा पूरा इलाका एग्रीकल्चर इलाका, पर बदकिस्मती हमारे हुकूमत भी हमारी है, CM सिंध भी हमारे गांव का, उसके बावजूद भी हमारे पास पानी नहीं है, ना पीने का पानी है न ज़मीनों के लिए पानी है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ज्यादा वक्त तक RBOD 2 मंसूबा मुकम्मल न करने वाले
सिंध हुकूमत के महकमा आबपाशी के अफसरान ने इसे 2 साल में मुकम्मल करने का दावा किया है। अभी हमने वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, जो पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको हमने मुख्तलिफ दिए। 3 कंसल्टेंट्स थे, अर्थवर्क के एक थे और मेजर स्ट्रक्चर्स के दूसरे थे और माइनर स्ट्रक्चर्स के दूसरे थे। अब हमने उनको यूनिफाइड करके एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट को हमने कहा है। अभी भी हमने फेडरल गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि कब कंप्लीट होगा, तो हमने कहा पैसे अगर हमें आप देंगे तो 2 साल में इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। और दूसरी शर्त ये कि स्टे ऑर्डर भी ख़त्म हो तब, क्योंकि कोर्टों में मसले कुछ ज़्यादा चल रहे हैं, लैंड एक्विजिशन के मसले हैं। अगर RBOT मंसूबे का काम हंगामी बुनियादों पर बहाल करके मुकम्मल किया जाए और जहरीले पानी को समंदर में गिराने का आगाज किया जाए तो इस खूबसूरत झील के उरूज को बहाल किया जा सकता है, जिससे माहीगीरों के मुरझाए चेहरों पर मुस्कुराहट रक्स करेगी और इलाके में खुशहाली परवान चढ़ेगी। रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त हमारे साथ कराची से मौजूद हैं अली असगर अरबाब, जो हमारे नुमाइंदे खुसूसी हैं। बहुत शुक्रिया अली असगर अरबाब साहब, आपने बड़ी तफसील से और बड़ी मेहनत से ये रिपोर्ट बनाई है। ये जो एक तस्वीर रिपोर्ट में सामने आ रही है, ये तो बहुत एक गंभीर सूरत हाल है जिसका इस वक्त मंछर झील शिकार है और वहाँ के जो माहीगीर हैं वो फाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं। ज़ाहिर है पानी खुश्क होता चला जा रहा है, माहौलियात के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि रिवाइवल इसका कैसे हो। अली असगर अरबाब साहब, देखिए, मंछर झील जो है ना, वो एक एशिया की सबसे बड़ी झीलों में इसका शुमार होता है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील थी, मगर बदकिस्मती से अब वो जहरीली हो चुकी है और जहरीली होने के बायस अब न उसमें मछली बाकी रही है और न ही वहाँ पर कोई आबी परिंदे आते हैं। नहीं तो ये तो एक टूरिज्म का एक बहुत बड़ा एक मकाम था, टूरिस्ट आते थे और उसकी वजह यह है कि जो दादू और लाड़काना की ज़मीनों का जो सैम का पानी और इसके अलावा जो शहरों का फजला और जो केमिकल्स वगैरह वो सारा डाल के एक प्लान बनाया गया कि इस प्लान को जो है किस तरह जो है डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो इसके लिए एक इनिशियली एक टेम्पररी स्टेज पे जब ये प्रोजेक्ट बनाया था 2001 में, तो उस वक्त बनाया गया कि इसको मंछर झील में जो है पानी को गिराया जाएगा और उसके बाद जो है जब ये प्रोजेक्ट जो मुकम्मल हो जाएगा और ये 273 किलोमीटर का एक बड़ा मंसूबा है और इस मंसूबे के जरिए जो ड्रेन बननी है वो जो 7 के करीब करमपुर से शुरू होके और घारो क्रीक में यानी जाके समंदर में गिरेगी। ये इतनी बड़ा प्रोजेक्ट है जो शुरुआती तौर पर 14 अरब रुपए की कास्ट से इसको तामीर होना था, मगर बदकिस्मती से इस प्रोजेक्ट को जो है इसमें डिले हुआ और इसमें जो है बड़ी करप्शन जो है वो ख़ासतौर पे ज़मीनों बेचने और इस प्रोजेक्ट के हवाले से उसमें बड़ी करप्शन हुई, जिसकी वजह से ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका और टेम्पररी तौर पे जो कहा गया था कि इस मंछर झील में ये पानी गिराएंगे और उसके बाद जो है फर्दर इसको जो है स्टेज 2 में जो RBOT 2 का जो मंसूबा है इसके जरिए जो है ये समंदर में गिराया जाएगा। ये यहाँ अरबाब साहब, ये नालायकी कहाँ पे थी? ज़ाहिर सूबाई हुकूमत का ये काम था और फिर जहाँ आप मेंशन कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे करप्शन हुई वो कुछ लोग आए शिकंजे में, कोई बासपुरस हुआ कि इतना अहम मंसूबा कैसे नामुकम्मल रहा? इसकी वजह ये है कि देखें, ये बेसिकली तो फेडरल फंडेड प्रोग्राम था और फेडरल गवर्नमेंट इसको फंड करती थी। तो ये 2008 के बाद जो है 2007 तक इस पे काम चला और 65% काम जो है उससे ज़्यादा ये काम मुकम्मल हो चुका है, बाकी 35% के करीब काम बाकी रहता है। मगर 2007 के बाद ये सही काम बंद हुआ है तो अभी तक मतलब उसका उस तरह रिवाइवल नहीं हुआ है। हालांकि ये तो एक अहम मंसूबा था क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी के वोटर हैं। साबिक वज़ीर आला अब्दुल्ला शाह का भी यही हल्का था और सिंध के मौजूदा वज़ीर आला जो हैं उनका भी यही हल्का इंतखाब है। और मंछर झील जो है वो पानी जो गिराया गया मंछर झील में उसने पूरे मंछर झील को बिल्कुल आलूदा बना दिया, जिसकी वजह से वहाँ का न सिर्फ जो माहीगीर तबका वो बुरी तरह मुतासर हो गया, मछली ख़त्म हो गई, बल्कि आसपास की ज़मीनें जो हैं वो भी बिल्कुल बंजर हो गई क्योंकि जहरीला पानी जो है वो अभी ज़मीन के गहराई तक पहुँच चुका है, जिसकी वजह से अब पानी का एक बहुत बड़ा बहरान है, पानी का एक बहुत बड़ा मसला है। लोगों के पास पीने के लिए पानी जो है उनको जो है मुयसर नहीं है
RO प्लांट्स तो लगाए गए हैं, मगर RO प्लांट्स कोई मतलब एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तकरीबन कोई 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है, मगर उसके बावजूद एक पाइपलाइन के जरिए भी जो बुबक का शहर है या मच्छर के जो रहवासी हैं उनको वहाँ से भी पानी नहीं फराहम किया जाता, जिस वजह से पूरे इलाका जो है वो इस वक्त पानी की तलाश में उनका वक्त गुजर जाता है। बड़े बड़े जमींदार थे, वो अभी बिल्कुल कसब परसी और गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मनसूबा ये जब माजी में पीपल्स पार्टी के दौर में ही जो है इसमें जो है इसका पानी गिराने का आगाज किया गया, और उसके बाद अगर ये मनसूबा मुकम्मल हो जाता तो शायद ये मच्छर झील जो है रिवाइव हो जाती। अभी भी ये मनसूबा मुकम्मल हो सकता है। जब मैंने RPOD के अफसरान से बात की तो उन्होंने कहा कि 2 साल के अंदर में इसको मुकम्मल कर सकते हैं, मगर इसमें बदकिस्मती से बड़े पैमाने पे अरबों रुपए की करप्शन की गई। खासतौर पे जो ज़मीनें फरोख्त हुई या उनकी जो पेमेंट हुई वो भी सही तरीके से नहीं हुई, या गलत लोगों पे या जाली पेपर्स पे इस तरह से उनकी पेमेंट हुई है, जिसमें नेब में भी उसके मुकदमात चल रहे हैं, और इसके अलावा कुछ अदालतें जो हैं। अच्छा, ये अली असगर अहबाब साहब, इसमें एक नुक्ता जो मैं जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि 2007 में काम रुका, फिर 2008 के बाद जाहिर है फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। अच्छा, विफाक में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सूबे में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। ये आप नहीं समझते कि बड़ा आसान होता कि चूंकि फेडरल हुकूमत भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और सूबाई हुकूमत भी मदद कर सकती थी, ये क्यों कर नहीं हो पाया? यानी पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत विफाक में भी, सूबे में भी, और फिर भी ये नहीं हो पाया। देखिए, ये कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 14 अरब रुपए के मतलब खती रकम के साथ ये मंसूबे का जिस वक्त आगाज हुआ, अब उस मंसूबे की कास्ट जो है 62 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है, मगर बदकिस्मती से आप देखें कि वो प्रोजेक्ट आज तक मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसमें 40 अरब रुपए जो हैं वो खर्च हो चुके हैं। 65% काम मुकम्मल हुआ। अगर फेडरल गवर्नमेंट देखें 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेडरल में भी गवर्नमेंट थी, और सिंध में तो 2008 से आज तक सिंध में पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है ना। तो अगर ये उस वक्त कोशिश की जाती तो ये फंडिंग के इश्यूज हैं या फंडिंग डिले हो रही है तो ये बिल्कुल आसानी के साथ हल हो सकता था, मगर ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो इस वक्त सिंध के मौजूदा वज़ीर आला हैं उनका अपना हल्का इंतखाब है, मगर उसके बावजूद वहाँ के जो हल्के के लोग हैं वो पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। उसमें हेपाटाइटिस में बता रहा हूँ आपको, हेपेटाइटिस B, C, लिवर और स्किन और बेशुमार जो है बीमारियाँ जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। आपको ये बताता मतलब मैं आप बताऊं कि वहाँ पर जो गरीब लोग हैं, पहले तो मछली है नहीं, जो माहीगीर जो झील के अंदर रहते हैं, कश्तियों में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, वो उसी पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो जहरीला है। आपको ये बता चलूँ कि WHO की जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक अगर पानी की कहीं किल्लत है तो 1000 तक जो है वो TDS का पानी काबिल इस्तेमाल करा दिया गया है, मगर इस झील का पानी तो 7000 TDS तक जाता है। मगर इसका रिवाइवल कैसे होगा? उसका रिवाइवल हो सकता है कि अगर इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाए और फिर ये पानी जो इस वक्त मच्छर झील में गिराया जा रहा है MNV ड्रेन के जरिए, तो इसको डाइवर्ट करके जैसे उसी ड्रेन में डाला जाएगा RPOD 2 में, तो ये जाके समंदर में गिराया जाएगा। तो मेरे ख्याल में मच्छर फिर रिवाइवल हो सकती है, क्योंकि मच्छर से जो पानी है, जो हिल्स हैं, कीर्तर के पहाड़ हैं, वहाँ से जो पानी आता है वो इसको फिर दोबारा सैराब कर देगा और ये फिर झील का पानी बेहतर हो जाता है। अच्छा, ये रिवाइवल पे तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा कि इसके फ़वाइद क्या होंगे, लेकिन अब ये बताइए कि इस रिपोर्ट में आप ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पे ज़ाहिर है पानी का एक बहुत बड़ा मसला है। फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो वहाँ पे लगे हुए हैं वो हम देख रहे थे कि वो ख़राब पड़े हुए हैं। क्यों कर इस जानिब तवज्जो नहीं जा रही कि जब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का भी हल्का इंतखाब यही है और ज़ाहिर है ये एक बड़ी अहम मामला है कि हल्का इंतखाब उनका वही है और उस जानिब तवज्जो नहीं जा रही, तो ये कैसे हो सकता है कि सिंध हुकूमत के नाक तले ये सब कुछ इस तरह से हो रहा है? देखिए, पहले जब ये जो RO प्लांट्स लगाए गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे सो मोटो लिया था तो उस पर RO प्लांट्स लगाया गया था। वो RO प्लांट्स चल रहे थे,
मगर ये जब से पहले स्कार्प और वापडा इसको चला रहे थे तो उस वक्त तो ये आरओ प्लांट्स काफ़ी हद तक काम कर रहे थे, मगर जब से सिंध हुकूमत को ये वाटर उनकी जो पोजीशन है या वो जो सिंध हुकूमत को डायरेक्टली जब मिलना शुरू हुई है तो ये आरओ प्लांट्स जो हैं वो अभी काम नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर आरओ प्लांट्स जो हैं वो नाकारा हैं। आप डॉक्यूमेंट्री में भी आपने देखा होगा कि उनकी हालत बिल्कुल ख़राब है और उनको बनाने वाला कोई नहीं है। हो सकता है फाइलों में इसके अखराजात वगैरह सब मेंटेन होते हों, मगर ग्राउंड पे जो है वहाँ पर जब मैंने देखा तो लोग कई किलोमीटर दूर दूर से पानी ले आते हैं और फिर वो पैसों से फरोख्त, एक 40 रुपए का, एक कहीं 50 रुपए का, कहीं 60 रुपए का एक जो ड्रम जो है वो उनको मिलता है पानी का, जो आप डॉक्यूमेंट्री में भी देखा। तो ये तो मतलब मेरे ख्याल में सीएम साहब का जो हल्का है या उसका जो आबाई गांव है मेरे ख्याल में 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है, मगर बदकिस्मती से उस पूरे इलाके में एक पानी का बड़ा, पीने के पानी का बड़ा बहरान पैदा करते हैं और लोग, ज़्यादातर जो लोग हैं उनका सारा वक्त जो है वो पानी कलेक्ट करने में गुजर जाता है। यहाँ तो थरपारकर जो है उससे भी ज़्यादा बदतर हालात हैं लोगों के, और बीमारियाँ इतनी ज़्यादा फैल चुकी हैं, गुर्बत का शिकार है, रोज़गार नहीं है लोगों के लिए, ज़मीनें ख़त्म हो गई हैं, और इसके अलावा पूरा झील जो है, जिस झील से पानी मिलता था उन ज़मीनों को, अब वो पानी ज़हरीला हो चुका है। तो पूरा इलाके की जो इलाका है उसमें जो लोग हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मुआशी बदहाली का शिकार हैं, और ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पर जो मछेरे थे वो यहाँ से जो है माइग्रेट करके जा चुके हैं, और वो अगर जो यहाँ रह भी रहे हैं तो वो रोज़गार के लिए कराची को जाना पड़ता है, बलूचिस्तान के समंदर की तरफ जाना पड़ता है, या दूसरी जो झीलें हैं उनकी तरफ जाके उनको रोज़गार करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल में उनकी जो फलाह के लिए मेरे ख्याल में पानी एक बुनियादी ज़रूरत है, वो भी उनको नहीं फराहम किया जा रहा है। तो ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि मतलब वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब जो है उसका अपना हल्का है, और ये सारे लोग जो हैं माजी में भी पीपल्स पार्टी को वोट देते रहे और अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन्होंने वोट दिया है और देते रहते। अच्छा, अब इसमें पीने का पानी ठीक है अरबाब साहब, अब ये बताइए कि अब आपने फरमाया कि 65% काम मुकम्मल है, 35% रहता है, इसमें अब विफाक को क्या करना है, विफाकी हुकूमत को क्या करना है, सूबाई हुकूमत को क्या करना है, कैसे ये एक कोऑर्डिनेशन बनेगी ताकि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए और मामला आगे जाए? इसमें यह है कि इस वक्त जो सिंध गवर्नमेंट का, क्योंकि पहले तो ये मुकम्मल तौर पे फेडरल फंडेड प्रोग्राम था और फेडरल गवर्नमेंट फंड करती थी, मगर अब जो है सिंध गवर्नमेंट ने भी कुछ हिस्सा उसमें डालना है जो मतलब तय हो चुका है। एक तो सिंध गवर्नमेंट को जो फंड्स हैं वो रिलीज करने चाहिए फौरी तौर पे, और दूसरी बात है कि फेडरल गवर्नमेंट जो इनके फंड्स अभी 22 अरब रुपए बाकी रहते हैं वो अगर टाइमली रिलीज हो जाएं तो शायद ये मनसूबा मुकम्मल हो सकता है, मगर उसमें ज़रूरत इस बात की है कि फेडरल गवर्नमेंट को उन पैसों की यूटिलाइजेशन पे बड़ा चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि माजी में आपको देखा है कि जो है वो अरबों रुपए की जो इस मनसूबे में करप्शन की गई है, खासतौर पे ज़मीनों की फ़रोख्त में अरबों रुपए की करप्शन की गई है। और दूसरी बात है इस मंसूबे में जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से दिए गए थे, जो मतलब पहले स्टेज में जो दिए गए थे, तो उसमें इस वक्त नैब भी जो है वो भी कार्रवाई कर रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट टाइमली फंड रिलीज करे, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि इसमें चेक एंड बैलेंस रखा जाए ताकि ये प्रॉपरली जो है वो यूटिलाइज हो और ये टाइमली जो है मंसूबा मुकम्मल हो जाए। अगर ये टाइमली मुकम्मल हो जाएगा तो न सिर्फ जामशोरों का, सेवन का, बाकी शहरों का जो धंधा है वो फुजला इसमें डाल के समंदर में गिराया जा सकता है, मगर फिर जरूरत इस बात की है कि समंदर में जब ये पानी गिराया जाए तो इसको ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए, उसके जरिए जो है वो समंदर में गिराया जाए। ठीक है, ठीक। अभी जो जरूरत इस बात की इस वक्त पूरी जरूरत है कि मंछर झील में जो एक तो मंसूबा मुकम्मल करना चाहिए, दूसरा जो है वो पानी फराहम किया जाए लोगों को। ठीक है, लोगों को पानी फराहम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अली असगर अरबाब नुमाइंदे खुसूसी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को इस मामले का नोटिस लेना होगा, और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं, पीने के साफ़ पानी की शदीद मुश्किलात हैं। वज़ीर आला सिंध को इस मामले पे नोटिस लेना होगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।